So this recording will be about Kant, Rawls, and Montesquieu, and I hope that if I have the energy and the strength, then I will start on the Muslim philosophers as well. So Immanuel Kant basically is not a philosopher who I would give a lot of time to because इसकी बातें काफ़ी वेग सी हैं और दूसरा आई डोंट थिंक मेरा जो गैस है कि ये पॉलिटिकल साइंस में इस पे क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि नॉर्मली नहीं आता इसलिए इतने घबराने की ज़रूरत नहीं है but just still do him. So he basically talks about how knowledge that a human being can have is very limited, and it's limited in the sense that it can only be that which you see. So he was an empiricist, much like Aristotle was, and he went against the rationalists of the time. Rationalism was another school of thought. He belonged to sort of the empirical school of thought, and he helped with the Enlightenment era as well, जिसमें empiricism बहुत ज़्यादा आगे forefront पे आ रहा था. तो he went against the rationalists क्योंकि rationalists जो है ना they basically believe that human beings can possess metaphysical knowledge यानी knowledge of things that they cannot touch, see, feel themselves, knowledge that is out there. But Kant went against them and he believed कि जो human beings जो है ना they can only like he restrained himself to stuff like maths or science or knowledge of the natural world. Basically जो आपकी 5 senses के through आप sense कर सकते हो. So because he was very interested in knowledge, उसकी एक philosophy है like his philosophy तो नहीं but उसकी बातें हैं which are often known as transcendental idealism. Transcendental idealism basically was Kant's writings in which he was trying to figure out कि ये जो नॉलेज आप सी फील देख सकते हो वो कहाँ तक लिमिटेड है और कहाँ से आगे मतलब कहाँ पर रुक सकती है. तो वो बेसिकली कहता था कि आप सिर्फ वो चीज़ें जो आपकी माइंड जो है ना अंडरस्टैंड कर सकता है बिकॉज ऑफ आपकी सेंसेस. सो द कनेक्शन बिटवीन योर माइंड एंड योर सेंसेस दैट इज़ बेसिकली व्हाट a human being's knowledge can be restricted to, and it cannot go beyond the realm of the empirical. ठीक है. उसके अलावा इसकी और कुछ बातें थी बिकॉज इस पे बेसिकली क्वेश्चन इस तरह आ सकते हैं कि राइट ए नोट ऑन Kant's political philosophy. What was Kant's political philosophy? What was his writings? A generic सा question आ सकता है which you can club many things. उसके अलावा he did not like democracy. ठीक है. Much like Mill. तो यहाँ पर आप जॉन स्टुअर्ट मिल की बात भी डाल सकते हो. दे वर बोथ वेरी वेरी ऑफ मेजॉरिटी रूल बिकॉज वो टिरनी ऑफ द मेजॉरिटी हो सकती है बिकॉज ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड डायरेक्ट डेमोक्रेसी की वजह से इंडिविजुअल लिबर्टीज़ भी थ्रेटन हो सकती हैं. सो ही प्रेफर्ड अ मिक्स फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसमें डेमोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी एंड मोनार्की ये तीनों जो है ना ये तीनों अगर एग्जिस्ट कर रही हो साइड बाय साइड तो ये जो मिक्स फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है दैट इज़ समथिंग दैट ही thought के would be a better form of government as far as protecting people's liberty was concerned. He said that the states, when they come to power, they can only come to power in order to protect the freedom of people. And so जो states हैं ना वो they cannot क्या कहते हैं impose any rules or restrictions that curb the freedom of people. And they cannot impose any particular conception of happiness upon citizens. They can't tell citizens to live a certain way because that's living that according to a certain way would give them happiness. People should have the right to choose to live however they want, and that is why freedom is basically the purpose of the state for Kant and the basis of the state for Kant. उसके अलावा वो कहता है कि जो laws हैं they basically cannot be based on happiness in the sense that आपको नहीं पता what people desire, so laws should be क्या कहते हैं
किसी को जब लॉ फॉर्मुलेट कर रहे होते हैं तो दे शुडंट मेक इट ऑन द बेसिस ऑफ कि जी इससे सबसे ज़्यादा लोगों को खुशी मिलेगी तो ये लॉ होना चाहिए, नहीं, बिकॉज ये यूनिवर्सल कंसेप्शन ऑफ हैप्पीनेस इज फ्लॉड. एवरीवन हैज़ देयर ओन क्या कहते हैं डिज़ायर फॉर डिफरेंट थिंग्स. उसके अलावा जो है बेसिकली ये जो है ना क्या कहते हैं ही यूज्ड टू से कि लॉज के पीछे अगर हैप्पीनेस नहीं हो सकता तो रीज़न शुड बी the basis of the creation of laws and the basis of government as well, कि you should publicly use reason in order to understand कि individuals को लिए क्या चीज़ बेहतर रहेगी क्या नहीं रहेगी, states किस तरह बेहतर चल सकते हैं किस तरह नहीं चल सकते, and that's how government officials should function essentially. और उसके अलावा he did believe in the social contract system much like Hobbes, Locke and Rousseau. तो वो कहता था कि पीपल जो 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 सॉवरेन जो गवर्नमेंट में आता है he has to be aware of the fact that people agreed to a social contract and came क्या कहते हैं the sovereign came to power through a social contract, so he should always remain mindful of the social contract. And so वो वही freedom वाली बात से link हो जाते हैं that people's rights and should be respected and their freedom should be respected. As far as voting is concerned, so he basically said that only those people can vote who own property. ठीक है, because those people who have property have used some form of skill in order to gain independence and उनको सिर्फ हक होता है property use करने का. And unfortunately वो कहता था which went against Mill, because Mill तो बहुत ज़्यादा औरतों के फेवर में था, but Kant कहता था कि women जो है ना they cannot vote. एंड इसके लिए इसने बहुत वेग कोई रीज़न नहीं दिया था असाइड फ्रॉम जस्ट सेइंग कि वो नेचुरल रीजंस की वजह से वोट नहीं कर सकती. तो दैट वाज क्वाइट अ वेग स्टेटमेंट. ठीक है. उसके अलावा हाँ प्रॉपर्टी की बात होगी तो वो काफ़ी ज़्यादा उसको इम्पोर्टेंस देता है. और क्या कहते हैं दूसरा वो कहता है कि unlike Locke, he opposed Locke in the sense that Locke gave people the right to rebel against an unjust ruler. Kant didn't, and he said that क्या कहते हैं people cannot rebel against the ruler. सही है. So he just said that क्योंकि जो state है वो he was a bit like Hobbes. He was more similar to Hobbes in the sense that Hobbes कहता था ना कि state of nature में इतने बुरे हालात होते हैं कि any form of government, any form of state is better than not having a state. Kant actually also said the same. He also said that any state embodies the general legislative will better than no state. Kant ने ये नहीं बोला था कि state of nature में हालात बहुत ख़राब होते हैं जिस तरह हॉब्स ने बोला था, मगर हॉब्स ने जब ये बात बोली थी कि हैविंग अ स्टेट इज़ बेटर, हैविंग एनी फॉर्म ऑफ स्टेट इज़ बेटर देन हैविंग नो स्टेट, वो बात जो है कांट उसके साथ एग्री करता है, क्योंकि वो कहता है कि जो लेजिस्लेटिव विल है यानी द यूनाइटेड विल ऑफ पीपल, देयर डिज़ायर, वो सारी बेहतर तरीके से जो है ना प्रोटेक्ट हो सकती हैं और क्या कहते हैं अचीव हो सकती हैं अंडर अ स्टेट सिस्टम रादर देन नॉट हैविंग अ स्टेट. सही है. उसके अलावा इसकी एक कांट की राइटिंग इट्स कॉल्ड एक ऐसे उसने लिखा था बेसिकली इट्स कॉल्ड टूवर्ड्स परपेचुअल पीस इन विच ही आउटलाइंड डिफरेंट conditions that should be fulfilled by states, and if those conditions are fulfilled then peace can be ensured in
in the world essentially and in between states. And those conditions basically were कि आपको जब peace treaties बनाते हो तो क्या कहते हैं इस कंडीशन से नहीं बनानी चाहिए कि आप आगे जाके उनको रिनेज कर दोगे या आप उनको ब्रेक कर दोगे. Your intentions should be pure when you go and make a peace treaty with another country. आपको क्या कहते हैं one state cannot annex another state, यानी one state cannot take over another state or conquer another state. आप क्या कहते हैं स्टैंडिंग आर्मीज़ को वो कहता था अबॉलिश कर दो क्योंकि स्टैंडिंग आर्मीज़ यही एक इमेज देते हैं दूसरे मुल्कों को कि वो एक मुल्क जिसकी स्टैंडिंग आर्मी है इट्स ऑलवेज ऑन गार्ड एंड रेडी टू गो टू वॉर. सो ही एडवोकेटेड फॉर द अबॉलिशमेंट ऑफ स्टैंडिंग आर्मीज़ एंड ही सेड दैट मुल्कों को जो हो ना कर्जे नहीं बेसिकली लेने चाहिए क्या कहते हैं अपने एक्सटर्नल अफेयर्स के लिए यानी अपने फॉरेन अफेयर्स के लिए यानी बिकॉज दैट शोज़ आप खुद सोचो ना वीकनेस ना क्योंकि अगर आपने कर्जे से बेसिकली अपनी डिफेंस चला रहे हो और अपनी मशीनरी ले रहे हो तो फिर जो कर्जा जो दे रहा है आपको ही technically controls your foreign affairs then, right? Because it's his money that you're using. And अगर आपके foreign affairs और आपकी defense ही किसी और मुल्क use करे तो आप weak हो रहोगे and the other country can continue to exploit that so that won't lead to peace and that can lead to war in the future if relations sour between the two countries. And he also advocated for the ban on interference by one state in the internal affairs of another. And he also set a series of limits on the conduct of war. यानी जब war जब हो रही होती है तो फिर किस तरह लोगों कंट्रीज़ को ऐड करना चाहिए उसमें भी उसने बहुत स्टिपुलेशंस डाली थी. बेसिकली वो जो स्टेप्स थे वो लिमिटेशंस जो थी दे जनरली वो बस कहती थी कि वो एक्ट्स नहीं अलाउ हो सकते जो मिसट्रस्ट ब्रीड करते हैं बिटवीन कंट्रीज एंड विच वुड मेक पीस इम्पॉसिबल बिटवीन कंट्रीज एंड this was later towards perpetual peace was basically later used by like the UN and different international bodies जो अब international humanitarian law है IHL है और जो laws हैं जो which govern conduct in war all of them were inspired and derived from Kant's writing in Towards Perpetual Peace. उसके अलावा इसका एक आइडिया है called the cosmopolitan right, which basically says that the whole world is ठीक है countries and states होती हैं separated from each other in the world मगर all citizens are joined together by the idea that they're all humans and they're all citizens of this one big world. ठीक है कॉस्मोपॉलिटनिज्म जिसना ग्लोबलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है ना ये वो है दैट ठीक है और वो कहते हैं कि जो मुल्कों के बीच रिलेशंस होते हैं दे आर नॉट द सेम एज लोगों के बीच के रिलेशंस बिकॉज इंडिविजुअल्स कैन रिलेट टू स्टेट्स ऑफ विच दे आर नॉट मेंबर्स एंड टू अदर इंडिविजुअल्स हु आर मेंबर्स ऑफ अदर स्टेट्स बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग ह्यूमन बीइंग्स. तो वो कुछ राइट्स देता है लोगों को बाय वर्च्यू ऑफ ऑल ऑफ देम being part of this big global cosmopolitan world. ठीक है जिसको वो कहते हैं rights of citizens of the world. ठीक है या फिर because citizens are part of a universal state of human beings जिसमें ये boundaries of countries don't matter. बट ऑब्वियसली लिमिटलेस राइट्स नहीं है कुछ सिर्फ सर्टेन राइट्स हैं. एक है राइट टू हॉस्पिटैलिटी यानी आप अगर दूसरे मुल्क तो गए हो तो आप दूसरे जो सिटीजन हैं उस मुल्क के दे शुड ट्रीट यू नाइसली बिकॉज यू आर अ ह्यूमन बीइंग एंड दैट यू शुड बी गिवन सम लिविंग स्पेस. ठीक है to live there and they should people should interact with you over there. They shouldn't alienate you. और उसके अलावा the right to engage in commerce यानी the right to engage in business या trade. Essentially this is also one right that क्या कहते हैं the other countries cannot forego. And तीसरा जो right है that's the right to travel.
through the land of other countries, because people should be able to do that. वो कहता है settlement is different. आप ये right नहीं होता लोगों के पास कि आप एक मुल्क में जाके बोरिया बिस्तर अपना ले जाओ और सेटल कर लो. That's not okay, but you can travel through other countries, and that should be allowed. So you had a very cosmopolitan outlook of the world, essentially. He also propagated that citizens should help those who are weaker than themselves. This was more of a social philosophy, and he said that जो society में दूसरे को help नहीं कर सकते उनकी help करनी चाहिए, जो basically जो rich हैं basically, ठीक है. They should look after the poor, and इस तरह की वो थोड़ी सी social philosophy की बातें भी advocate करता था. So this essentially is Kant, not too difficult at all. उसके अलावा there's Montesquieu, who's basically the crux of Montesquieu is the social contract. Sorry, the separation of powers. Social contract theory because वो थोड़ा सा linked है social contract theory से, but खैर. The separation of powers is basically the idea that the judiciary, executive, and the legislature should be separate from each other. Now, Montesquieu was not the one who came up with this idea. He is not the creator of this idea. Locke is. ठीक है? So he actually derived the idea from Locke, but because Montesquieu only wrote about this, so he made this idea much more prominent. He gave this idea much more momentum and much more importance than any other writer. That's why he's so closely associated with this idea of separation of powers. Also, he expanded this idea because he spoke about the judiciary, whereas Locke did not speak about the judiciary, and other writers also did not speak about the judiciary. They only talked about the separation between the legislature and the executive. तो मॉन्टेस्क्यू का जो है ना वो बेसिकली ये करता था, क्या कहते हैं, वो कहता था कि जब आप तीनों की पावर सेपरेट नहीं करते, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर और जुडिशरी की, तो द पीपल हु सफ़र आर द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, क्योंकि लिबर्टी उनकी लूज़ हो जाती है, क्योंकि एक मुल्क एक लाइक अगर आपकी कोर्ट्स जो हैं वो सारे फंक्शंस करना शुरू कर दे तो वो एक बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे और वो फिर अपना पावर अब्यूज़ करेंगे, एंड इसकी वजह से जो है ना लोगों की जो राइट्स एंड लिबर्टीज़ है ना वो क्या कहते हैं अब्यूज़ बहुत ज़्यादा हो जाएंगी. ठीक है. उसके अलावा इसके जो आइडियाज़ हैं they were used in the American Constitution, they were used in the French क्या कहते हैं Constitution, and even Pakistan में there's a concept of separation of powers which we have taken from the American Constitution. UK does not have a concept of separation of powers. You guys should know this for paper 2 of political science. Separation of powers is a doctrine that is associated with America, not with England. क्योंकि इंग्लैंड में सच एक तो कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं है और उनका इस तरह सिस्टम नहीं है डिफरेंस का. उसके अलावा क्या कहते हैं ये 1748 में किताब थी इसकी द स्पिरिट ऑफ द लॉज, उसमें इसने बेसिकली लिखा था कि गवर्नमेंट के फंक्शंस को 3 हिस्सों में डिवाइड कर देना चाहिए, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर. ठीक है. ठीक है. और हर को फिर जो है ना चेक्स एंड बैलेंसेस एक दूसरे पे एक्सरसाइज करने चाहिए, एक सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस हो जाना चाहिए. सही है. तो ये नहीं होना चाहिए कि तीनों जो पावर्स हैं वो बिल्कुल ही सेपरेट एक्ट करें. नो, दे शुड कीप अ चेक ऑन ईच अदर टू मेक श्योर दैट द अदर इज़ नॉट going beyond its jurisdiction and not doing anything that's beyond its power. सही है. तो क्या कहते हैं ये है कि मतलब ये जो तुम लोग की जो मैंने तुम लोग को जो बुक बताई है पॉलिटिकल साइंस वाली जहांगीर वर्ल्ड टाइम्स की, उसमें ये बहुत डिटेल में आई थिंक थोड़ा अननेसेसरीली डिटेल में एक्सप्लेन हुआ है, बट आई वुड सजेस्ट दैट यू गाइस रीड इट फ्रॉम देयर बिकॉज
I just skimmed through Montesquieu because मुझे था कि Montesquieu पे अलग से question नहीं आएगा, but this is something I can add for paper 2 in political science, जहाँ पर separation of power की बात हुई है constitutional law में, तो मैं Montesquieu का नाम ठोस दूंगी. Even paper 1 part B में कोई questions generally democracy, liberty, rights वगैरह के ऊपर आए तो कहीं आप ठोस सकते हो. ये आइडिया लॉक पे क्वेश्चन आए तो आप बता सकते हो कि लॉक की बातें लॉक ने बात की थी सेपरेशन पावर्स की, वो इतनी इम्पोर्टेंट थी कि वो कल को जाके मॉन्टेस्क्यू ने भी फिर आगे एलैबोरेट की थी बेसिकली. ठीक है. उसके अलावा Montesquieu is also credited with being one of the first writers to use the word executive. ठीक है. एंड दूसरा इसका जो यूनिक सेलिंग पॉइंट है Montesquieu का वो यही है कि ही emphasized judicial functions. सही है. उसके अलावा उसने उस ज़माने ही रोड ड्यूरिंग अ टाइम जब किंग्स होते थे इंग्लैंड में, तो दिस वाज वन ऑफ उसकी काफ़ी रेवोल्यूशनरी बात थी क्योंकि ही वाज एसेंशियली पुटिंग द किंग आउटसाइड द लेजिस्लेचर. उससे पहले लेजिस्लेचर इज़ द पार्लियामेंट, राइट. सो ही उस ज़माने में किंग वाज लाइक एन ऑल राउंडेड अथॉरिटी जो मतलब पार्लियामेंट में भी होता था, हर जगह होता था. लेकिन नहीं, मोंटेस्क्यू ने कहा कि पार्लियामेंट डिफरेंट है, किंग इज़ पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव, द लेजिस्लेचर इज़ डिफरेंट. सही है. सो क्या कहती हैं, इसने एक ऑटोनमस थ्योरी ऑफ गवर्नमेंट एसेंशियली दी थी. ठीक है. एंड इट्स बिकम लाइक इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इन द सेंस दैट इट्स बिकम लाइक अ यूनिवर्सल क्राइटेरिया फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एनीवेयर. व्हेनेवर यू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इन एनी कंट्री, assumption होती है कि separation of powers or systems of checks and balances would be embedded in the constitution in order to protect the liberties of the people, and that is credited to Montesquieu. Now, because the British system is not a constitutional form of government, hence उनके पास इस तरह ये नहीं है system. So Montesquieu is also often called the Aristotle of the 18th century because Aristotle was also a constitutionalist. Remember, I told you Aristotle studied like 156 constitutions and derived his theory from the study of constitutions because he was also an empiricist. So Montesquieu also stuck to constitutional forms of government, and Montesquieu, like Aristotle, saw security of people only under a constitutional government. सही है. तो ये बेसिकली क्रक्स है मॉन्टेस्क्यू की. उसके अलावा वी हैव रॉल्स. रॉल्स इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग फिलोसोफर. बेसिकली इसकी थी थ्योरी ऑफ जस्टिस, जिसमें उसने बात की थी एक कॉन्सेप्ट की विच इज़ कॉल्ड द वेल ऑफ इग्नोरेंस एंड द ओरिजिनल पोजिशन. Now, the veil of ignorance in original position is you have to conceptualize basically एक रूम imagine करो जिसमें एक पर्दा लगा हुआ है और आप पर्दे के पीछे बैठे हुए और आपके आंखों के सामने सिर्फ पर्दा है. You can't see what's beyond the पर्दा and you can't see anywhere else. Complete darkness. So you are sitting in the original position. And this parda is the veil of ignorance. It is separating you from knowing what is behind, like what is in front of the parda. While sitting behind the पर्दा, you are told कि आपने एक नई सोसाइटी इमेजिन करनी है, क्रिएट करनी है खुद से, और उस सोसाइटी में आपने राइट्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं लोगों को और लिबर्टीज़ डिस्ट्रीब्यूट करनी है लोगों को, तो और इक्वालिटीज़ डिस्ट्रीब्यूट करनी है लोगों को. तो आपने फिर किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? तो जब आप होंगे बैठे सिटिंग ऑन द अदर साइड एंड आपको नहीं पता कि आप कहाँ एंड अप करोगे सोसाइटी में. व्हाट लाइक वुड यू बी रिच, वुड यू बी पुअर, वुड यू बी फिजिकली एबल्ड, वुड यू बी डिसेबल्ड, वुड यू बी अ मैन, वुड यू बी अ वुमन, would you be a religious minority? You don't know anything. You are in the veil of ignorance, but you have to distribute rights amongst people. So Rawls argues that when you are put in that position, everybody will try
कि जो सबसे लीस्ट एबल्ड हैं सोसाइटी को, उनको सबसे ज़्यादा राइट्स दिए जाएं, क्योंकि उनको होगा कि अगर हम उनको डर होगा कि अगर हम सोसाइटी में बियॉन्ड द पर्दा हम वी फियर पुट इन द सोसाइटी एंड हमें वी आर क्रिएटेड एज द मोस्ट गरीब or as the most physically disabled, तो we would want कि हमें हमारे protections हों. Man always looks out for himself. So अमीर तो चलो अमीर रहेगा, उसको पास तो कुछ ना कुछ गुजारा कर लेगा, फिजिकली एबल भी गुजारा कर लेगा, लेकिन जो डिसेबल्ड है, जो रिलीजियस माइनॉरिटी है, जो गरीब है, उसका क्या बनेगा? एंड क्योंकि आप एक वेल ऑफ इग्नोरेंस में बैठे हो, आपको नहीं पता आप कहाँ एंड अप करोगे सोसाइटी में, और आपको हमेशा डर रहेगा कि यार व्हाट इफ आई एंड अप एज गरीब और व्हाट एवर एंड अप एज अ रिलीजियस माइनॉरिटी, देन आई नीड टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ, एंड द बेस्ट वे आई कैन प्रोटेक्ट माई सेल्फ इज जितनी ज़्यादा पॉसिबल है राइट्स और प्रिविलेजेस मैं दे सकता हूँ लीस्ट एबल्ड को, उनको मैं दूंगा. ठीक है. तो the whole idea of this exercise of the veil of, and this is called the theory of justice, because आप को sitting in the veil of ignorance and sitting in the original position, to you this would be justice, क्योंकि rich तो will be able to fend for themselves. Justice तो तब होगा जब the poor can be given इतना that they can eventually rise to the level of the rich and there can be equality in society. सही है. तो बेसिकली इसके दो प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस हैं इसकी थ्योरी में. ठीक है. एक है कि आपने लोगों के जो इंडिविजुअल राइट्स हैं दे आर इनवायलेबल, यानी पीपल हैव इंडिविजुअल राइट्स एंड दे शुड बी प्रोटेक्टेड एट ऑल कॉस्ट्स. एंड सेकेंडली कि जब सोशल इनइक्वालिटी तो इनएविटेबल है सोसाइटी में, लेकिन जब होती है सोशल इनइक्वालिटी तो आपको सबसे ज़्यादा एम्फेसिस और सबसे ज़्यादा कंसर्न और आपकी प्रायोरिटी शुड बी द नीड्स ऑफ द वर्स्ट ऑफ इन सोसाइटी. ठीक है. द poorest in society. So one is the inviolability of individual rights and second is when social inequality को जब आप justify करते हो तो absolute आपको priority देनी चाहिए to the needs of the worst off in society, because you don't know if you end up क्या कहते हैं as the worst off in society essentially ना. आपको नहीं पता होता कि आप कहाँ basically end up कर जाओगे. तो ये तो होगी रॉल्स की essentially basically theory of justice. ठीक है. उसके अलावा ठीक है इसकी है कि हाँ द होल आइडिया बिहाइंड द थ्योरी ऑफ जस्टिस एंड दिस वेल ऑफ इग्नोरेंस कि आप फिलोसफर्स उन लोगों को इनकरेज करता था कि आप ज़्यादा प्रैक्टिकली सोचो मॉरल इश्यूज़ के बारे में, पुट योर सेल्फ इन द शूज़, डोंट जस्ट leave philosophy and political science to books and academia and theoretical बातें, abstract बातें, but make it more realistic and make it more क्या कहते हैं applicable to society, ताकि आपको ज़्यादा practically देखो ताकि वो फिर उसकी applicability भी ज़्यादा हो. Right. So his idea went completely against utilitarianism. So Mill और Bentham की बातों से completely different है, because remember Mill वगैरह कहते थे कि majority को benefit करना चाहिए. जो rights और laws बनाओ they should be such that they bring the greatest happiness for the greatest amount of people. But Rawls says they should rights distribute ऐसे करो जिसमें आप worst of की needs को सबसे ज़्यादा emphasis दो, not majority की needs को. So क्या कहते हैं it was against utilitarianism. It was also against communism या Marxism, because Marxists don't believe in the concept of natural rights, यानी people having rights just because they're human beings. Rawls does. क्या कहते हैं Kant and Rawls की जो similarity वो थी कि they treat people as ends not as means, so they do give a lot of importance to people themselves.
ठीक है, उनकी कंसर्न, उनकी राइटिंग सिर्फ लोगों के ऊपर है, लोगों की बेहतरी के ऊपर है। एंड लाइक प्लेटो, क्या कहते हैं, रॉल्स ऑल्सो एम्फसाइजेस जस्टिस अ लॉट। एंड क्या कहते हैं, ही सेड कि justice should be the basis of laws. So if laws are unjust, then they should be changed, and they can be changed. They should be changed, ठीक है। और क्या कहते हैं, उसके अलावा इसकी क्रिटिक भी है। एक फिलोसोफर है नोजिक, वो कहता था कि वो क्रिटिक करता था कि जो तुम ये जो थ्योरी ऑफ जस्टिस और ओरिजिनल पोजीशन में जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो राइट्स, उससे एक्चुअली ज़्यादा इनक्वालिटी आएगी, लोगों के राइट्स इंक्रोच अपन होंगे। और क्या कहते हैं, एंड दूसरा कि एक और क्रिटिसिज्म है कि इसने बातें तो की हैं सारी, बट ही हैजंट रियली गिवन अ प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ a real life social system या a system existing in the real world जिसमें इसकी ये जो थ्योरी है वो अप्लाई हो सकती है। सो ये इसका है। दूसरा इसका एक डिफरेंस प्रिंसिपल है विच इज़ exactly the same, just a fancy word for what I just explained, कि आप बेनिफिट करो लीस्ट एडवांटेज को सोसाइटी में, आप उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा दो, आप उनको सबसे ज़्यादा राइट्स दो, तो दैट अगर उसको कोई फैंसी नेम दें तो दैट्स कॉल्ड द डिफरेंस प्रिंसिपल। फिर इसका एक और है जस्ट सेविंग्स प्रिंसिपल, विच इज़ बेसिकली वो एडवोकेट करता था कि उतना खाओ पियो और उतना यूज़ करो, उतने रिसोर्सेज यूज़ करो सोसाइटी में कि आप अगली जनरेशन के लिए भी कुछ छोड़ दो, ठीक है। सो वो एक और इसका बड़ा डिफरेंट सा आइडिया था कॉल्ड द इक्वालिटी ऑफ आउटकम प्रिंसिपल। इक्वालिटी ऑफ आउटकम बेसिकली मीन्स कि अगर आपकी किसी और इंसान लाइक किसी दो लोगों की स्किल्स और बैकग्राउंड और सब कुछ सेम है, तो जो उनकी रिवॉर्ड है यानी जो उनकी सैलरी है शुड बी बेस्ड ऑन सोशल गुड्स ऑफ सर्विसेज परफॉर्म्ड, यानी जो सोसाइटी को जितना वो दे रहे हैं ना वापस, यानी क्या कहते हैं, डॉक्टर्स फॉर इंस्टेंस, they might have the same education as other people, but they might be giving a lot back to society in terms of social benefit than others essentially, ठीक है। तो उस बेसिस पे आपको सैलरी डिटरमिन करनी चाहिए। रॉल्स इज़ प्रिटी इजी, रॉल्स इज़ प्रिटी क्या कहते हैं, इंटरेस्टिंग, एंड आई वुड होप कि इस पे क्वेश्चन आए, बिकॉज ये काफ़ी मुझे भी इंटरेस्टिंग लगता था, आई थिंक ही इज़ प्रिटी इजी टू स्टडी।